Good morning, student. Now, today we are studying is the matter around us pure. हमने ये देखा कि what is the matter, what is the solution, what is the mixture, and solution are divided into two types. Number one is the homogeneity, another one is the heterogeneity. Okay, हमने solution की properties देखा. Number one is the solute, another one is the solvent. solute जिस particles को हम solution या solvent में dissolve करेंगे, those particles is called solute and the medium is called solvent. medium कुछ भी हो सकता है, either water or liquid substance, whatever, or gaseous form or solid form. Okay, now concentration of solution. How we identify the solution are concentrated or diluted? चलो तो हम एक्टिविटीज़ करते हैं. In activity 2.2, again I repeat, open your chemistry book, page number 16. Now we doing some activities. 2.2 we observe that group A and group B obtain different sets of solution. So we understand that in a solution the related proportion of the solute and solvent can be varied. हर ग्रुप के solute और solvent में differences हैं. Depending upon the amount of the solute present in the solution, it can be called a dilute, concentration or the saturated solution. Dilute and concentrated are comparatively terms in activity 2.2. The solution obtained by group A is dilute as compared to obtained by group B. Okay, activity: take approximately 50 ml of water, each to separated beaker, add salt in one beaker and sugar is another beaker, or barium chloride is added in second beaker. Then continue stirring. When no more solute can be dissolved, heat the container of beaker to rise the temperature about 5 degrees centigrade. Is the amount of salt and sugar or the barium chloride that can be dissolved in water at the given temperature the same? Good. At any particular temperature, a solution that has dissolved of much solute as it capable of dissolving is said to be the saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature, it is called saturated solution. The amount of solute present in saturated solution at the particular temperature is called solubility. Now, if the amount of the solute contained in the solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution. चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं और ये पता करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन. हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Much amount of solute when we dissolve in solution or solvent, the particular temperature. आपने देखा होगा कि जब हम शुगर या सॉल्ट या बेरियम क्लोराइड को 50 ml वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद, एक अमाउंट के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद कर देता है. तो वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूट है जिसके बाद ये सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद कर देता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संतृप्त विलयन कहते हैं. इसके बाद अगर आप पार्टिकल्स डालते हैं सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड की, तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन विच हैविंग much amount of water. ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें वाटर की बहुत अधिक मात्रा है, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे. और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन
जिसमें वाटर कंटेंट कम है, बट पर्टिकुलर पार्टिकल्स के जो सॉल्यूशन अमाउंट है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, तो हम उसे कंसनट्रेटेड या हिंदी में उसे क्षारीय या सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, हाफ ग्लास वाटर, उसमें आप सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करो। आप देखोगे कि एक समय के बाद सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व होना बंद कर देते हैं, पार्टिकल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑन दैट पॉइंट यू कैन से दिस इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आप एक अमाउंट भी उसमें डालोगे, 1 स्पून सॉल्ट या शुगर डालोगे, दे कैन नॉट डिज़ोल्व ईजिली, सो वी कैन से द सॉल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड। अब वो असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और what is the meaning of dilute and concentrated? The much amount of water is called dilute solution, and pure solution related to sugar and salt and barium chloride is called or iodine tincture is called concentrated solution. Okay, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम किसी भी विलयन या सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं, उसकी सांद्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हाउ मच अमाउंट वी डिज़ोल्व एंड हाउ मच अमाउंट द सॉल्यूशन वी ओब्टेन। हमने कितने चम्मच शक्कर डाला डिवाइडेड बाय कितना वाटर लिया या कितना लिक्विड कंटेंट लिया। तो सपोज कि वी एडेड 4 स्पून ऑफ शुगर, that means 5 ml and 50 ml of water। तो आप easily बता सकते हैं कि the concentration of amount equals to 0.10। अब mass by mass percentage of the solution, that is equal to mass of solute divided by mass of solution and 100। Then second formula, mass by volume percentage of solution, that is mass of solute divided by volume of solution into 100। ओके, ये एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी आपका जो वर्क है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। और ये एक्टिविटीज़ आप घर में कीजिए, साइंस की एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये 2-4 एक्टिविटीज़ आप घर में कीजिए। अगर आपके घर में इंक है, शुगर है, सॉल्ट है, तो इसको डिज़ोल्व कीजिए और आप देखिए कि पर्टिकुलर किस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कितने अमाउंट शुगर ऐड करने के बाद एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। देन उसके बाद अगर फिर से हम डिज़ोल्व करते हैं तो किस लेवल पे आके वो पार्टिकल्स हमको दिखने लगते हैं और डिज़ोल्वेशन का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। ऑन दैट पॉइंट वी कैन से द सॉल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आज के लिए बस इतने ही करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, बुक्स को पढ़ो, और कोई क्यूरीज हो तो मुझे आप गूगल क्लासरूम में बिल्कुल ऑनेस्टली लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।